دنیا کی تاریخ صرف طاقتور ملکوں کی کہانی نہیں بلکہ طاقت کی جنگ کی داستان ہے۔ سیاست کے عین کھیلوں میں لاکھوں انسانوں کی زندگیاں قربان ہو گئی۔ طاقت کے اس کھیل میں عالمی سیاست نے امن کے بجائے خوف کو جنم دیا۔ یہ ہیں وہ منحوس سائے جو آج بھی دنیا کے مستقبل پر منڈلا رہے ہیں۔ حقیقت کو دیکھو اور سوال پوچھو۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں فریحہ علی۔ دنیا کے نقشے پر جو دکھائی دیتا ہے وہ حقیقت کا صرف ایک پہلو۔ ہر معاہدے، ہر جنگ، ہر سیاسی اقدام کے پیچھے چھپی ہوئی کہانیاں ہیں۔ یہ کہانیاں اکثر عوام تک پہنچنے سے پہلے ہی دفن کر دی جاتی ہیں۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں طاقت، مفادات اور خفیہ سازشیں آپ کے سامنے ظاہر ہوں گی۔ ہم لا رہے ہیں آپ کے سامنے لوگوں کی حقیقت، دنیا پر عالمی سیاست کے منحوس سائے۔ سن 1776 برطانوی کالونیوں نے بغاوت کر کے آزادی کا اعلان کیا۔ اسی لمحے ایک نئی ریاست پیدا ہوئی، دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ لیکن جلد ہی غلامی کے مسئلے نے ملک کو شدید سیاسی بحران میں دھکیل دیا۔ 19ویں صدی میں یہی اختلاف ایک خونریز خانہ جنگی میں بدل گیا۔ جنگ کے بعد امریکہ تیزی سے ایک مضبوط اور بااثر ریاست بننے لگا۔ خانہ جنگی کے بعد امریکہ تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی اور معاشی طاقت بننے لگا۔ اب 20ویں صدی کے آغاز میں دنیا پہلی عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ 1917 میں امریکہ جنگ میں شامل ہوا اور طاقت کا توازن بدل گیا۔ اس جنگ کے بعد امریکہ دنیا کی سب سے طاقتور ریاستوں میں شامل ہو چکا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا دو بڑی طاقتوں میں تقسیم ہو گئی۔ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایک نئی کشمکش شروع ہوئی جسے سرد جنگ کہا گیا۔ یہ مقابلہ صرف الفاظ تک محدود نہیں رہا بلکہ دنیا کے کئی خطے اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ عالمی سیاست میں خفیہ منصوبے اور طاقت کا کھیل مزید گہرا ہوتا گیا۔ 20ویں صدی کے اختتام تک امریکہ عالمی سیاست کا مرکزی کردار بن چکا تھا۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد عالمی طاقت کا توازن بدل گیا۔ اس کے بعد امریکہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی اور فوجی طاقت کے طور پر سامنے آیا۔ ان کی پالیسیوں نے دنیا بھر میں حمایت کے ساتھ ساتھ تنقید بھی پیدا کی۔ امریکہ کی سیاسی طاقت آج بھی عالمی نظام کو متاثر کرنے والے اہم عوامل میں سے ایک ہے۔ 21ویں صدی میں امریکہ نہ صرف فوجی بلکہ معاشی طاقت کے طور پر بھی ٹاپ لیول پر رہا۔ عالمی سیاست میں اس کی سفارتی حکمت عملی کئی اہم فیصلوں کو متاثر کرتی رہی۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں امریکی فوجی موجودگی عالمی طاقت کے توازن کا حصہ بن گئی۔ ان پالیسیوں پر دنیا بھر میں مختلف آراء اور بحثیں جاری رہتی ہیں۔ امریکہ کی سیاسی حکمت عملی آج بھی عالمی سیاست کے منظرنامے کو متاثر کر رہی ہے۔ 1960 کی دہائی میں امریکہ ویتنام جنگ میں براہ راست مداخلت کر گیا۔ لاطینی امریکہ میں امریکی پالیسیاں کئی حکومتوں کو تبدیل کرنے میں شامل رہیں۔ 21ویں صدی کے آغاز میں افغانستان میں امریکہ نے طالبان کے خلاف آپریشن کیا۔ 2003 میں عراق میں فوجی کارروائی نے عالمی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان مداخلتوں نے نہ صرف خطوں میں بلکہ عالمی سطح پر بھی امریکہ کی شبیہ پر اثر ڈالا۔ سرد جنگ میں امریکہ نے دنیا بھر میں اپنے مفادات کے لیے پراکسی جنگیں چلائیں۔ 1954 کے بعد کوریا میں امریکہ نے جنوبی کوریا کی حمایت میں فوجی کارروائی کی۔ لاطینی امریکہ کے کئی ممالک میں امریکہ نے اپنے اتحادی حکومتیں قائم کی۔ یہ پراکسی جنگیں امریکہ کی طاقت کو بڑھاتی رہیں اور عالمی سیاست میں اس کا غلبہ قائم کیا۔ 1980 کی دہائی میں خلیج فارس میں تیل اور سیاسی مفادات کے لیے امریکہ نے قدم رکھا۔ 2003 میں عراق میں فوجی کارروائی نے عالمی تناظر کو بدل کر رکھ دیا۔ افغانستان میں طالبان کے خلاف کارروائیاں امریکہ کی خارجہ پالیسی کا حصہ تھیں۔ ان جنگوں نے عالمی رائے عامہ میں امریکہ کی تصویر پر گہرا اثر ڈالا۔ میڈل ایسٹ کی یہ جنگیں امریکہ کی عالمی طاقت اور اثر و رسوخ کی علامت بنی۔ عالمی سیاست میں میڈیا صرف خبر نہیں دیتا بلکہ بیانیہ بھی بناتا ہے۔ بڑی طاقتوں کی سیاست کا سب سے بڑا بوجھ اکثر عام لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ دنیا بھر میں لوگ جنگوں اور طاقت کی سیاست کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ آخر سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کیا طاقت کی یہ سیاست کبھی ختم ہو سکے گی؟ 20ویں صدی کے آغاز تک روس ایک وسیع سلطنت تھا جس پر زار کی مطلق العنان حکومت قائم تھی۔ 1917 میں روس میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا جس نے سلطنت کو ختم کر دیا۔ اس انقلاب کے بعد ایک نئی ریاست وجود میں آئی، سوویت یونین۔ سوویت نظام نے تیزی سے معاشی ترقی اور مضبوط ریاستی کنٹرول قائم کیا۔ چند ہی دہائیوں میں سوویت یونین دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں شامل ہو گیا۔ دوسری عالمی جنگ میں سوویت یونین نے نازی جرمنی کے خلاف فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہو گئی، ایک طرف امریکہ، دوسری طرف سوویت یونین۔ سرد جنگ کے دوران دونوں طاقتیں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہو گئیں۔
सोवियत यूनियन ने खलाई दौड़ में भी अपनी ताकत दिखाई। जंग के बाद सोवियत यूनियन एक बड़ी आलमी ताकत बनकर उभरा। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में फौजी मुदाखलत की। ये जंग सोवियत यूनियन के लिए एक तवील और महंगी जंग साबित हुई। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और एक दौर का खात्मा हो गया। सोवियत यूनियन के बाद रूस एक नई रियासत के तौर पर उभरा। आज भी रूस आलमी सियासत में एक ताकतवर और असरअंदाज मुल्क समझा जाता है। यही ताकत की सियासत वो साए हैं जो आलमी अमन पर मुसलसल असरअंदाज होते हैं। सदियों तक चीन एक अजीम सल्तनत रहा जिस पर शहंशाहों की हुकूमत कायम थी। 19वीं सदी में बैरूनी ताकतों की मुदाखलत ने चीन की सियासी ताकत को कमजोर कर दिया। 1911 के इनकलाब ने चीन की हजारों साल पुरानी शहंशाही हुकूमत का खात्मा कर दिया। इनकलाब के बाद चीन कई सालों तक सियासी इंतशार और खाना जंगी का शिकार रहा। 1939 में एक नई रियासत कायम हुई, अवामी जमहूरियत चीन। 1939 के बाद चीन में एक नया कम्युनिस्ट निजाम कायम हुआ जिसने रियासती कंट्रोल को मजबूत किया। हुकूमत ने मईशत और ज़राअत को मुकम्मल तौर पर रियासती मंसूबाबंदी के तहत चलाने की कोशिश की। 1960 की दहाई में शुरू होने वाले सकाफती इनकलाब ने चीन के माशरे को शदीद हलचल में डाल दिया। इस दौर में सियासी इख्तिलाफ और फिक्री आज़ादी पर सख्त पाबंदियां आयद की गयी। इन तमाम हंगामों के बावजूद चीन ने एक मजबूत और मरकजी रियासती निजाम कायम रखा। और 80 की दहाई में चीन ने अपनी मईशत को बदलने के लिए बड़े मुआशी इस्लाहात शुरू किए। चंद ही दहाइयों में चीन दुनिया की सबसे बड़ी सन्नाती ताकतों में शामिल हो गया। तेज तरक्की ने चीन के शहरों को जदीद आलमी मराकज में तब्दील कर दिया। इसी दौरान चीन ने अपनी फौजी ताकत को भी तेजी से मजबूत किया। आज चीन आलमी सियासत और मईशत में एक इंतहाई असरअंदाज ताकत बन चुका है। चीन में सियासी निजाम मजबूत रियासती कंट्रोल के तहत चलता है, जहां एक जमात मरकजी किरदार अदा करती है। रियासती निगरानी के वसी निजाम पर आलमी सतह पर बहस और तनकीद होती रही है। सियासी आजादी और इजहार राय के बारे में भी मुख्तलिफ आलमी हलकों में सवालात उठाए जाते रहे हैं। इलाकाई तनाज़ात और समंदरी हुदूद के मसाइल ने भी आलमी सियासत में कशीदगी पैदा की। चीन की बढ़ती हुई ताकत आलमी सियासत में नए सवालात और नए तवाज़ुन को जन्म। तेज इक्तिसादी तरक्की ने चीन को आलमी मईशत का एक बड़ा मरकज बना दिया। चीन की तिजारत और सरमायाकारी अब दुनिया के कई इलाकों तक फैल चुकी है। माशी ताकत के साथ चीन ने अपनी फौजी सलाहियत को भी मुसलसल बढ़ाया। आलमी सियासत में चीन का किरदार अब पहले से कहीं ज्यादा असरअंदाज हो चुका है। 20वीं सदी से पहले जजीरा अरब मुख्तलिफ कबाइल और छोटी रियासतों में तकसीम था। 20वीं सदी के आगाज में मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान इक़्तिदार की जदोजहद जारी थी। 1932 में एक नई रियासत कायम हुई जिसे आज सऊदी अरब के नाम से जाना जाता है। चंद ही सालों बाद तेल की दरियाफत ने इस नई रियासत की तकदीर बदल दी। तेल की दौलत ने सऊदी अरब को आलमी मईशत और सियासत में एक अहम मकाम दे दिया। तेल की दरियाफ्त के बाद आलमी ताकतों की तवज्जो सऊदी अरब की तरफ बढ़ने लगी। वक्त के साथ सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान करीबी सियासी और मुआशी ताल्लुकात कायम हुए। सऊदी तेल आलमी मईशत का एक अहम सुतून बन गया। तवानाई की आलमी सियासत में सऊदी अरब का किरदार मजीद मजबूत होता गया। तेल की दौलत ने सऊदी अरब को तेजी से एक जदीद और असरअंदाज रियासत में तब्दील कर दिया। वक्त के साथ सऊदी अरब मशरिक वस्ता की सियासत में एक अहम और असरअंदाज किरदार अदा करने लगा। सफारती ताल्लुकात और इलाकाई इत्तेहादों ने सऊदी अरब की सियासी अहमियत को मजीद बढ़ाया। खिते के मुख्तलिफ तनाज़ात में सऊदी अरब का किरदार अक्सर आलमी बहस का मौजू बना। इंसानी हुकूक और सियासी आज़ादी के हवाले से भी मुख्तलिफ आलमी हलकों में तनकीद की जाती रही है। इन तमाम तनकीदों के बावजूद सऊदी अरब आलमी मईशत और सियासत में एक अहम ताकत के तौर पर मौजूद है। सऊदी अरब में हुकूमत एक शाही निजाम के तहत चलती है, जहां इक्तदार शाही खानदान के पास है। सियासी आजादी और इंसानी हुकूक के बारे में आलमी सतह पर कई बार सवालात उठाए गए। तेल की ताकत ने सऊदी अरब को आलमी तवानाई की सियासत का एक मरकजी किरदार बना दिया। रीजन की कई सियासी कशीदगियों में सऊदी अरब का किरदार आलमी बहस का हिस्सा रहा है। ताकत, दौलत और सियासत का ये इम्तिजाज आज भी आलमी मंजरनामे को मुतासिर कर रहा है। 20वीं सदी के आगाज तक फिलिस्तीन एक रीजन था जहां मुख्तलिफ मजहबों और कल्चर के लोग आबाद थे। पहली आलमी जंग के बाद ये इलाका बड़ी आलमी ताकतों की सियासी मंसूबाबंदी का हिस्सा बन गया। इसी दौरान बड़ी तादाद में यहूदी आबादकार इस खत्ते में आना शुरू हुए। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस खिते की तकसीम का एक मुतनाज़े मंसूबा पेश किया। 1948 में इसराइल के क़याम के ऐलान के साथ ही ये रीजन एक बड़े तनाज़े में दाखिल हो गया। इसराइल के क़याम के फौरन बाद अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान पहली बड़ी जंग शुरू हो गई। इस जंग के बाद लाखों फिलिस्तीनी बेघर हो गए
और पनाह गुज़ीन बन गए। 1967 की जंग के बाद इसराइल ने मजीद इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। उसके बाद फिलिस्तीनी इलाकों में कशीदगी और तनाज़ात का सिलसिला जारी रहा। ये तनाज़ा आज भी आलमी सियासत के सबसे पेचीदा मसाइल में शुमार होता है। वक्त के साथ फिलिस्तीनी इलाकों में सिक्योरिटी निज़ाम और सरहदी कंट्रोल मजीद सख्त होते गए। इंसानी हकूक के हवाले से मुख्तलिफ आलमी तंजीमें कई बार तशवीश का इजहार करती रही हैं। इसराइल ने अपनी सिक्योरिटी और दिफाई निज़ाम को रीजन के सबसे मजबूत निज़ामों में शामिल कर लिया है। मिडल ईस्ट की सियासत में इसराइल का किरदार अक्सर तनाज़ात और सिफारती कशीदगी से जुड़ा रहा है। ये तनाज़ा आज भी आलमी सियासत के सबसे हसास और पेचीदा मसाइल में शामिल है। यरूशलेम और मुकद्दस मकामात की हैसियत ने इस तनाज़े को मजीद हसास बना दिया है। हर नई झड़प के बाद आम शहरियों को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी कई दहाइयों से इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सियासी इख्तिलाफात और इलाकाई मफादात इस मसले को मजीद पेचीदा बनाते रहे। यही आलमी सियासत के वो साए हैं जो आज भी रीजन के अमन पर मंडला रहे हैं। सदियों तक बरसगीर मुख्तलिफ सल्तनतों और तहजीबों का मरकज रहा। 18वीं और 19वीं सदी में बरसगीर पर बरतानवी हुकूमत कायम हो गई। वक्त के साथ आजादी की तहरीक जोर पकड़ने लगी। 1947 में बरसगीर की तकसीम के साथ 2 नई रियासतें वजूद में आईं। आजादी के बाद भारत ने एक नई सियासी रियासत के तौर पर सफर शुरू किया। आजादी के बाद भारत को कई सियासी और सरहदी मसाइल का सामना करना पड़ा। कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया की सियासत का एक बड़ा मसला बन गया। ये मसला कई दहाइयों से आलमी सफारतकारी में ज़र बहस रहा है। भारत ने अपनी फौजी और दिफाई ताकत को मुसलसल मजबूत किया। वक्त के साथ भारत आलमी सियासत और मईशत में एक अहम किरदार अदा करने लगा। कश्मीर में भारतीय फौजी ताकत के इस्तेमाल ने इंसानी हुकूक के आलमी सवालात को जन्म दिया। मुख्तलिफ नस्ली और मजहबी ग्रोहों के दरमियान कशीदगी सियासी मसाइल को मजीद बढ़ा देती है। सियासी फैसलों और हुकूमत की पॉलिसियों पर आलमी और मुकामी तनकीद होती रही है। भारत की बढ़ती ताकत ने रीजन में तवाज़ुन और आलमी सियासत पर असर डालना शुरू कर दिया। ये मसाइल और ताकत का इम्तिजाज भारत को आलमी सियासत में एक पेचीदा किरदार दे रहा है। आज भारत दुनिया की तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशतों में शामिल है। भारत ने फौजी और दिफाई ताकत में भी खित्ते में अपनी जगह मजबूत कर ली है। आलमी सियासत में भारत की मौजूदगी और असर व रसूख बढ़ता जा रहा है, लेकिन खित्ते में जारी तनाज़ात और इंसानी हुकूक के मसाइल अभी भी हल तलब हैं। ताकत, सियासत और मसाइल का ये इम्तिजाज भारत को आलमी सतह पर एक पेचीदा और मजबूत किरदार देता है। 1947 में पाकिस्तान एक नई रियासत के तौर पर वजूद में आया। इब्तिदाई सालों में सियासी और माशरती ढांचे को मजबूत करने की कोशिशें जारी थीं। पाकिस्तान ने अपनी फौजी और दिफाई ताकत को खित्ते में अहम मुकाम दिलाने के लिए तैयार किया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और आलमी ताल्लुकात ने उसे खित्ते में एक मौसर किरदार दिया। इक्तिसादी और सियासी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाई। पाकिस्तान में फौज ने कई बार जमहूरी हुकूमतों को माजूल करके मुल्क की तकदीर पर कब्जा किया। ये मुदाखलत अवाम की सियासी आज़ादी और जमहूरी हक को मुसलसल महदूद करती रही है। सियासी क़यादत को महदूद करना और फौज का गैर मुंतखब इक़्तिदार अवाम के लिए संगीन नताइज ले आया। ये फौजी मुदाखलतें आज भी पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत के लिए एक भारी साए की तरह मौजूद है। दहशतगर्दी के खिलाफ फौज की गलत पॉलिसियों की वजह से लाखों बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया और लाखों कबायली इलाकों के लोग बेघर हो गए। कबायली इलाकों में जारी फौजी कार्रवाइयों ने मुकामी लोगों की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ फौज की पॉलिसियों ने कई बार इंसानी जानों और बुनियादी हुकूक को खतरे में डाल दिया। इलाकाई सियासत में पाकिस्तान की फौजी किरदार ने आलमी सतह पर तनकीद और शक पैदा किया है। सियासी इख्तिलाफात और फौजी असर व रसूख ने पाकिस्तान की जमहूरियत को बार बार कमजोर किया। ये पेचीदा कशीदगियां आज भी पाकिस्तान की सियासी और समाजी तरक्की पर साए डाल रही हैं। पाकिस्तान आज भी सियासी और इक्तिसादी चैलेंजेस के बावजूद तरक्की की राह पर गामजिन है। फौजी ताकत खित्ते में पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करती है, लेकिन इसके असरात अवाम पर भी हैं। आलमी सियासत में पाकिस्तान के किरदार ने उसे खित्ते में एक अहम मगर पेचीदा मकाम दिलाया है। सियासी इख्तिलाफात, दहशतगर्दी और फौजी मुदाखलतों के असरात आज भी पाकिस्तानी माशरे पर नुमाया है। ये पेचीदा मसाइल और ताकत के इम्तिजाज पाकिस्तान को आलमी सियासत में एक निहायत हसास और चैलेंज भरा किरदार देते हैं।